رات کی گہری خاموشی میں ایک سنسان راستہ دھند میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی مگر اس میں ایک عجیب سا خوف گھلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان مسافر تھکے قدموں کے ساتھ اس راستے پر آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے جوتوں کی چاپ ویران فضا میں دور تک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر دور کہیں مدھم روشنیوں پر پڑی جو کسی شہر کی لگ رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا کیونکہ اس راستے پر کسی شہر کا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس کے دل میں تجسس اور بے چینی ایک ساتھ جاگ اٹھے اور وہ آگے بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا روشنیوں کی چمک بڑھتی گئی مگر فضا اور بھی زیادہ خاموش ہو گئی۔ ایک بڑا سا دروازہ اس کے سامنے آیا جو بغیر کسی آواز کے خود ہی کھل گیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوا اور ایک نئی پر اسرار دنیا میں قدم رکھ دیا۔ شہر کے اندر داخل ہوتے ہی اسے لگا جیسے وقت رک گیا ہے اور سب کچھ ساخت ہو گیا۔ چاروں طرف پرانی عمارتیں تھیں جن کی دیواروں پر وقت کے نشانات واضح تھے۔ کھڑکیوں کے پیچھے ہلکی ہلکی روشنی جلملا رہی تھی جیسے کوئی وہاں چھپا ہوا ہو۔ گلیاں سنسان نظر آ رہی تھی مگر فضا میں کسی کی موجودگی کا احساس تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ دھند جیسے کچھ وجود آہستہ آہستہ حرکت کر رہے ہیں۔ وہ انسان نہیں تھے بلکہ بے چین روحیں تھیں جو کسی مقصد کے بغیر بھٹک رہی تھی۔ ہر روح کے چہرے پر دکھ اور ادھوری خواہشات کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک روح اس کے قریب آئی اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مسافر نے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس کی آواز جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ روح نے بس ایک سمت کی طرف اشارہ کیا اور پھر دھند میں غائب ہو گئی۔ پھر مسافر اس اشاروں کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سمت میں چلنے لگا۔ وہ ایک تنگ اور تاریک گلی میں داخل ہوا جہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ گلی کے آخر میں ایک پرانا دروازہ ہلکا ہلکا ہل رہا تھا جیسے اسے ہی بلا رہا ہو۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر ہر طرف پرانی تصویریں لگی ہوئی تھی جو گرد سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ہر تصویر میں کسی نہ کسی انسان کی ادھوری کہانی جھلک رہی تھی۔ ایک تصویر میں ایک لڑکی آنسو بہا رہی تھی جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ دوسری تصویر میں ایک شخص اندھیرے میں کھڑا تھا جیسے راستہ بھول گیا ہو۔ مسافر کو محسوس ہوا کہ یہ تصویریں زندہ ہیں اور اسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ اچانک ایک تصویر سے سرگوشی آئی، ہمیں مکمل کرو۔ یہ آواز سن کر اس مسافر کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور وہ
पीछे हट गया। कमरे का माहौल अचानक भारी और खौफनाक हो गया, जैसे अब कुछ होने वाला हो। वो तेजी से बाहर निकला तो आसमान पर काले बादल छा चुके थे। हवाएं भी तेज हो गई थी और उसके साथ साथ अजीब सी चीखें भी गूंजने लगी थी। शहर की फजा में बेचैनी और दर्द पहले से ज्यादा बढ़ गया था। अब मुसाफिर को लगा जैसे शहर उसके हर कदम पर नजर रख रहा है। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई साया उसके पीछे चल रहा है। वो रुक गया, मगर साया भी रुक गया, जैसे उसकी ही नकल कर रहा हो। जब वो मुड़ा तो उसके सामने इस जैसा एक और वजूद खड़ा था। उसकी आंखें खाली थी और वो इसके अपने खौफ की शक्ल बन चुका था। मुसाफिर के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। साया आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द घूमने लगा, जैसे उसे अपने अंदर कैद करना चाहता हो। हर लम्हा उसकी ताकत कम होती जा रही थी और वो कमजोर महसूस कर रहा था। उसने हिम्मत जमा करने के लिए आंखें बंद कर ली और एक गहरा सांस लिया। इसी लम्हे एक नर्म और पुरसुकून आवाज उसके कानों में गूंजी, डरो मत। उसने आंखें खोली तो एक छोटा सा रोशन चिराग उसके सामने जाहिर हुआ। चिराग की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई इसके इर्द गिर्द फैलने लगी। जैसे ही रोशनी बढ़ी, साया पीछे हटने लगा और वो कमजोर हो गया। मुसाफिर ने आगे बढ़कर चिराग को अपने हाथ में थाम लिया। यह रोशनी उम्मीद की थी, जो उसके खौफ पर अब गालिब आ रही थी। चिराग हाथ में आते ही शहर का मंजर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। अंधेरा कम होने लगा और गलियां साफ नजर आने लगी, जैसे धुंध छट रही हो। रूहें अब पहले की तरह खौफनाक नहीं लग रही थी, बल्कि पुरसुकून महसूस हो रही थी। कुछ रूहें उसके करीब आकर रुकने लगी, जैसे उससे मदद चाहती हों। उनके चेहरों पर एक खामोश दरख्वास्त और उम्मीद की झलक थी। एक बूढ़ी रूह ने आहिस्ता से कहा, हमें आजाद करो। मुसाफिर ने हैरत से पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? रूह ने जवाब दिया, हमारी कहानियां मुकम्मल करके। तब उसे एहसास हुआ कि ये सब अधूरी कहानियां हैं जो कैद हैं। यही इस शहर का असल राज था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। मुसाफिर ने एक एक करके रूहों की कहानियां सुनना शुरू कर दी। हर कहानी में दर्द, मोहब्बत, जुदाई और पछतावे की झलक थी। वो अपनी समझ के मुताबिक इन कहानियों को मुकम्मल करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही एक कहानी मुकम्मल होती, एक रूह सुकून से गायब हो जाती। फजा में आहिस्ता आहिस्ता सुकून बढ़ने लगा और खौफ कम होने लगा। चिराग की रोशनी और भी रोशन हो गई, जैसे उसकी ताकत बढ़ रही हो। शहर की गलियां अब कम वीरान
और ज्यादा जिंदा महसूस होने लगी। मुसाफिर को महसूस हुआ कि वो किसी बड़े मकसद को पूरा कर रहा है, लेकिन अभी भी कई रूहें बाकी थी जो उसकी मुंतजिर थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसे जल्दी करना था ये सब काम। आखिरकार वो एक बड़ी और खौफनाक इमारत के सामने पहुंच गया। ये इमारत बाकी सबसे ज्यादा तारीफ और पुरअसरार लग रही थी। वो हिम्मत करके उस इमारत के अंदर दाखिल हुआ तो मुकम्मल खामोशी छा गई। कमरे के बीच एक तख्त था जिस पर एक ताकतवर रूह बैठी थी। उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी जो बहुत खौफनाक लग रही थी। ये रूह इस शहर की मुहाफिज थी जो सब कुछ देख रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने बहुत कुछ बदल दिया है। मुसाफिर ने फिर से हिम्मत करके जवाब दिया, मैं इन्हें आजाद करना चाहता हूँ। रूह ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर अब अपनी कहानी भी मुकम्मल करो। ये सुनकर मुसाफिर समझ गया कि अब उसका इम्तिहान शुरू हुआ है। मुसाफिर ने अपनी जिंदगी के हर पहलू को याद करना शुरू किया। उसके खौफ, उसकी नाकामियां और उसके अधूरे ख्वाब सब सामने आने लगे। वो हमेशा सच्चाई से भागता रहा था और खुद को भी नजरअंदाज करता रहा था। इसी कमजोरी ने उसे इस पुरअसरार शहर तक पहुंचा दिया था। अब उसने हिम्मत करके अपने अंदर के अंधेरे को कबूल करना शुरू किया, अपनी गलतियों को तस्लीम किया और खुद को माफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने खुद को मुकम्मल किया, चिराग की रोशनी तेज हो गई। पूरा शहर रोशनी में नहा गया और रूहें आजाद होने लगी। हर तरफ सुकून और खामोशी फैल गई, जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। यह सब से बड़ी जीत थी जो उसने हासिल की थी। सुबह की पहली रोशनी के साथ शहर आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। इमारतें धुंध में तब्दील होने लगी और गलियां भी मिटने लगी। रूहें रोशनी में बदलकर आसमान की तरफ बुलंद होने लगी। मुसाफिर ने खुद को एक खाली मैदान में खड़ा पाया। अब वहां कोई शहर नहीं था, सिर्फ खामोशी बाकी थी। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और हल्कापन था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था, बल्कि बदल चुका था। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे कुछ नजर न आया। दूर कहीं एक मध्यम रोशनी अब भी चमक रही थी और इसी के साथ इस मुसाफिर की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची।